عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا شور۔ آزاد امیدوار حافظ ممتاز احمد نے نتائج کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا۔ حافظ ممتاز احمد کا NA 98 سے دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا شور۔ آزاد امیدوار حافظ ممتاز احمد نے نتائج کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا۔ حافظ ممتاز احمد کا NA 98 سے دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط۔ دھاندلی کا شور۔ آزاد امیدوار حافظ ممتاز احمد نے نتائج کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا۔ حافظ ممتاز احمد کا NA 58 سے دوبارہ گنتی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط۔ آزاد امیدوار حافظ ممتاز احمد نے کہا کہ فیصل آباد کے حلقہ NA 58 میں الیکشن نتائج میں مبینہ دھاندلی کی گئی۔ پولنگ اسٹیشنوں سے حاصل کردہ فارم 45 کے مطابق دوبارہ گنتی کرائی جائے۔ فارم 45 کے مطابق مد مقابل امیدوار کو شکست ملی ہے۔ فارم 47 میں ہارے ہوئے امیدوار کو فاتح قرار دیا گیا۔ فارم 45 کے مطابق میرے ووٹ 1,17,659 ہیں۔ مخالف لیگی شہباز بابر کے 99,399 تھے۔ تبدیل شدہ فارم 49 پر شہباز بابر کے 1,19,559 ووٹ ہیں، جبکہ میرے 1,05,653 تھے۔ فارم 47، 48 اور 49 کے اجرا کے وقت الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی۔ حافظ ممتاز احمد کا کہنا تھا کہ NA 58 کے مکمل نتائج فارم 45 کے مطابق جاری کیے جائیں۔ الیکشن ہو گئے، نتائج بھی آ گئے، ملکی سیاسی عدم استحکام کا بحران تاحال جاری۔ خام مال کی قیمتیں کم ہوئی، نہ کاسٹ آف پروڈکشن۔ تاجر پریشان، کاروباری افراد کا سیاسی جماعتوں کو معاشی استحکام کے لیے معاملات جلد طے کرنے کی گزارش۔ الیکشن ہو گئے، نتائج بھی آگے، ملکی سیاسی عدم استحکام کا بحران تاحال جاری۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی فضا فیصل آباد کی مارکیٹ سے اثر انداز۔ خام مال سستا ہونے کی بجائے مہنگا ہونے لگا، کاسٹنگ مزید مہنگی ہوگی۔ کاروباری افراد کہتے ہیں الیکشن نتائج سب مانے تاکہ کاروبار چل سکے۔ کسی سیاسی جماعت کو اکثریت نہیں ملی جو زیادہ متاثر کر رہی ہے۔ سب کو ملکی معاشی صورتحال پر غور کرنا ہوگا۔ مارکیٹس میں خریدار نہیں، انویسٹر بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ الیکشن میں کسی جماعت کو بھی وہ اکثریت نہیں ملی، تو اس کی وجہ سے دوبارہ پھر وہی جو صورتحال سیاسی عدم استحکام والی وہ شروع ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی ہے، پتہ نہیں آگے جا کے کیا بننا ہے۔ اس وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت کاروبار بہت کم تھوڑا ہو رہا ہے۔ انویسٹر انویسٹمنٹ کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور مارکیٹ میں کوئی گاہک نہیں ہے۔ کاروباری افراد نے سیاسی جماعتوں کو معاشی استحکام کے لیے معاملات جلد طے کرنے کا مشورہ دے دیا۔ حکام کی عدم دلچسپی یا معاملہ کچھ اور۔ FBR کا معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ التوا کا شکار۔ 145 سرکاری اور نیم سرکاری محکموں کو آن لائن سسٹم کے ذریعے FBR کے ساتھ منسلک ہونا تھا۔ FBR کی جانب سے عمل نہ ہونے پر ٹیکس آمدن میں کمی آئی۔ معاشی چیلنجز کا مقابلہ، اصلاحات، اقدامات کے منصوبے فائلوں میں دب گئے۔ FBR کا معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ التوا کا شکار۔ 145 سرکاری و نیم سرکاری محکموں کو آن لائن سسٹم کے ذریعے FBR کے ساتھ منسلک ہونا تھا۔ ان محکموں نے سروسز حاصل کرنے والے تمام محکموں اور افراد کی تفصیلات FBR کو فراہم کرنا تھیں۔ ریل پر سفر، نئی گاڑیوں، جائیداد کی خرید و فروخت اور دیگر کاروباری افراد کی تفصیلات بھی محکمہ نے دینی تھی۔ تفصیلات کی روشنی میں متعلقہ افراد کے ذرائع آمدن اور ٹیکس کی مانیٹرنگ ہونی تھی۔ FBR کی جانب سے عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے منصوبہ ٹھپ ہو گیا۔ FBR حکام کے مطابق منصوبے پر عمل درآمد کے لیے جلد نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ جھنگ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا نایاب، غریب عوام یوٹیلیٹی سٹورز پر گھنٹوں انتظار کے بعد خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے پر مجبور۔ شہری مارکیٹ سے مہنگے داموں آٹا خریدنے پر بھی مجبور ہیں۔ جنگ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت، غریب عوام حکومتی ریلیف سے محروم۔ گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد خالی ہاتھوں گھر کو جانے لگے۔ انتظامیہ کی نااہلی پر شہری بل بلا اٹھے، بولے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کے اصول کے لیے صارفین زمین پر ڈیرے ڈالنے پر مجبور ہیں۔ دہاڑی توڑ کر آتے ہیں مگر آٹا نہیں ملتا۔ ہم دیہڑی دار بندے ہیں، ہم آٹا نہیں ملتا، دیہڑی توڑ کے آئے ہیں، 3-4 دن سے آٹا ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہا۔ حکومت سے درخواست ہے ہمیں آٹا ملا جانے۔ خواتین کہتی ہیں چھوٹے بچے گھر چھوڑ کر مجبوراً آٹا خریدنے آتے ہیں مگر مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ آٹے کا بھی پڑ رہا، ہر چیز کا پڑ رہا، بیمار بندے بے ہوش ہو جا، ملتا پھر کچھ نہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں، وہ تو آ ہی نہیں نہ رہی ہے چینی، تو کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، پیچھے گودام میں ہی نہیں ہے کہتے ہیں چینی۔ شہریوں نے حکومت سے نوٹس لینے اور سستے آٹے وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔
महकमा सेहत फैसलाबाद की नाअहली लाखों का नुकसान करने लगी। मरकजी दफ्तर का कीमती सामान लावारिस छोड़ दिया। बेड्स, व्हील चेयर्स और साइड टेबल खुले आसमान तले खराब होने लगे। महकमा सेहत फैसलाबाद की नाअहली सर चढ़कर बोलने लगी। महकमा सेहत के मरकजी दफ्तर में लाखों का सामान लवारिस, हिफाजती इकदाम ना होने के बाद बेड्स, व्हील चेयर्स और साइड टेबल्स खुले आसमान तले खराब होने लगे। गर्दो गुबार और बारिश के पानी से सामान जंग आलूदा होने लगा। महकमा सेहत इंतजामिया लाखों रुपए मालियत का सामान महफूज मुकाम पर मुंतकिल ना कर सका। महकमा सेहत की सुस्ती मरीजों के इलाज मुआवजा के लिए आया सामान अस्पतालों तक ना पहुंच सका। इंतजामिया सामान को मरकजी दफ्तरों में खराब होने के बजाय अस्पतालों तक पहुंचाए, शहरियों का मुतालबा। सिटी 41 पर खबर चलने के बाद महकमा सेहत इंतजामिया ने सामान इलाज गाहों में मुंतकिल करने की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन ईमान अली के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ बात करें डॉक्टर उमैर विर्क को एमएस चिल्ड्रन अस्पताल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर उमैर विर्क को 3 माह के लिए इजाफी चार्ज सौंपा गया है। डॉक्टर सुफियान को एमएसएस चिल्ड्रन अस्पताल के ओहदे से हटा दिया गया। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे आजादार हुसैन से। आजादार, क्या तफसीलात है, बताइएगा। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से डॉक्टर उमैर विर्क को जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट चिल्ड्रन अस्पताल का इजाफी चार्ज सौंप दिया है और जारी करदा नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक डॉक्टर उमैर विर्क को जो है वो 3 माह के लिए बतौर एमएस एडिशनल चार्ज जो है वो सौंपा गया है चिल्ड्रन अस्पताल का। और इससे कबल जो डॉक्टर सुफियान थे बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से उन्हें एमएस के ओहदे से हटा दिया गया है और डॉक्टर उमैर विर्क को जो है वो बतौर एमएस चिल्ड्रन अस्पताल तैनात कर दिया। उसको बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बहरानों में घिर गई। पीएफसी शेयर्स में 50% कटौती, मुलाजमीन की तनख्वाह और ठेकेदारों की अदायगी करना मुश्किल हो गया। फंड्स ना होने से अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैंप का काम सुस्त रवि का शिकार। जंग में भी महकमों की जानिब से यूटिलिटी बिल्स की अदायगी कड़ा इम्तिहान बन गई। फंड्स की किल्लत फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए तनख्वाहें अदा करना चैलेंज बन गया। पीएफसी शेयर्स में 50% कटौती के बाद कंपनी के माली मसाइल बढ़ने लगे। मुलाजिमीन की तनख्वाहें और ठेकेदारों की अदायगियां करना मुश्किल होने लगा। कंपनी हुक्काम के मुताबिक पीएफसी शेयर्स में कटौती के बाद मामला चलाना मुमकिन नहीं रहा है। मुलाजिमीन की कम अज कम तनख्वाह 32,000 करने से अकाउंट्स पर बोझ मुसलसल बढ़ रहा है। फंड्स की अदम दस्तयाबी, फैसलाबाद में तरक्याती काम लटक गए। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैंप का तमीराती काम सुस्त रवि का शिकार। एफडीए ने काम मुकम्मल न होने की वजह फंड्स की अदम दस्तयाबी को करार दे दिया। रेलवे अराजी कीमत में महकमा रेलवे के 13 करोड़ के वाजबात अदा नहीं किए जा सके। ठेकेदार की जानिब से तमाम हैवी मशीनरी का काम भी रोक दिया गया। जराये के मुताबिक बकायाजात की अदम अदायगी के बायस फ्लाईओवर गर्डर्स नस्ब न हो सके। आम इंतखाबात के दौरान मुंजमद फंड्स का इजरा न हो सका। जंग में महकमों की जानिब से यूटिलिटी बिल्स की अदायगी कड़ा इम्तिहान बन गई। कब हुकूमत बनेगी, कब फंड्स मिलेंगे, सरकारी अमवार ठप होने लगे। फंड्स न होने से टेलीफोन, बिजली, सुई गैस के यूटिलिटी बिल्स की अदायगी रुकी हुई है। ऑफिस मैनेजमेंट, स्टेशनरी, मुरम्मत और दीगर दफ्तरी जरूरियात के लिए भी पैसे नहीं। डीसी दफ्तर, शोबा रेवेन्यू, महकमा सेहत, सोशल वेलफेयर, महकमा लेबर, महकमा बहबूद आबादी, महकमा लोकल गवर्नमेंट, ज़राअत, तालीम को फंड्स की अदम दस्तयाबी से मुश्किलात दरपेश है। महकमा खजाना ने इंतखाबात से कबल ही फंड्स वापस लिए थे। फेस्को बिजली चोरी और यूनिट्स में खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। 7 माह में 6900 से जायद मीटर्स टेस्ट, 42,92,000 यूनिट्स के बिल जारी किए गए। फेस्को एमएनटी लैब ने हजारों यूनिट्स के खुर्द-बुर्द होने का सुराग लगा लिया। गुज़िश्ता 7 माह में 6900 से जायद मीटर्स टेस्ट किए गए। 42,92,000 टेस्ट यूनिट्स के बिल सार्फिन को चार्ज। फेस्को के शोबा एमएनटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। एमएनटी लैब ने खराब, स्लो और दीगर मीटर्स की तकनीकी टेस्ट किए। फेस्को हुकाम के मुताबिक जदीद लैब में मीटर्स टेस्टिंग का अमल जारी है। इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर हर सूरत बिल चार्ज होंगे। बिजली चोरों की शामत, रात की तारीकी में डायरेक्ट तारें लगाकर और मीटर टेम्पर करने वाले बिजली चोर हो जाएं होशियार। फेस्को की स्पेशल टास्क फोर्स के नाइट रेड गुज़िश्ता एक हफ्ते में 28 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों को 16 लाख से जायद के जुर्माने, मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कर लिया। 320 को जेल की हवा खानी पड़ी। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के दौरान 6 करोड़ रुपए जुर्माना और 3.5 करोड़ रुपए की रिकवरी की। एक्सियन फेस्को सैयद फहीम शाह के मुताबिक बिजली चोरी की मुहिम के दौरान 13 लाख यूनिट्स डिटेक्टराइज ड्राइविंग लाइसेंस ना बनवाने वाले शहरियों के खिलाफ घेरा तंग। लर्निंग लाइसेंस के 42 दिन पूरे हुए पर कंप्यूटराइज लाइसेंस ना बनवाने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
लर्निंग लाइसेंस बनाकर कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस न बनवाने वाले शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। सीटीओ मकसूद अहमद ने कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस न बनवाने वालों के खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू करने का हुक्म दे दिया। लर्निंग लाइसेंस के 45 दिन पूरे होने पर कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस बनवाना नागुज़ीर है। फैसलाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद लर्निंग लाइसेंस बना चुकी है। कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस न बनाने वालों को अब सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सीटीओ मकसूद अहमद लून कहते हैं, कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस की चेकिंग के लिए खसूसी मुहिम शुरू कर रहे हैं। इन लोगों ने लर्नर लाइसेंस बनाए हुए हैं और 42 दिन उनके पूरे हो चुके हैं। मेरी उनसे अपील है कि वो फिल फॉर हमारे दफातर आए, जो कि 24/7 सर्विस दे रहे हैं आवाम की सहूलत के लिए, तो वो अपने फिल फॉर अपने लाइसेंस बनवाएं। पुलिस हुकाम ने लर्निंग लाइसेंस के बावजूद कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस न बनवाने पर भारी जुर्माने का अंदिया दिया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। थानों को सिप्स प्रोटोकॉल पर मुंतकिल करके भी बिल्डिंग्स की हालत ना तब्दील हो सकी। थानों पर करोड़ों रुपए के फंड से 5 स्टार होटल जैसी शक्ल दी गई। करोड़ों रुपए के फंड से थाने सेप्स प्रोटोकॉल पर मुंतकिल, मगर बिल्डिंग्स की हालत बेहतर ना हो सकी। सामने से थाने 5 स्टार्स होटल जैसे, अंदरूनी और बैक साइड से बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार है। थाना आने वाले साइलिन को दाखिल होने पर 5 स्टार होटल और पिछली साइड पर खंडर का गुमान लगने लगा। करोड़ों रुपए से फ्रंट साइड की तज़ीनो आराइश और फर्नीचर की खरीदारी की गई। अंदरूनी और बिल्डिंग की खस्ता हाल हिस्से थानों की तज़ीनो आराइश के मंसूबे का मुंह चढ़ाने लगे। थानों की मुकम्मल तज़ीनो आराइश का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं बनाया गया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब बार काउंसिल के हिदायत पर फैसलाबाद डिवीजन में वकला की हड़ताल। वकला के अदालतों में पेश न होने से साइलिन रुल गए। पंजाब बार काउंसिल की हिदायत पर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का अदालतों के बाइकआउट। वकला अदालतों में पेश न हुए। फैसलाबाद बार ने अदालतों की तकसीम से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ओहदेदारान की वकला के घरों पर छापे, सियासी और गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत। चन्योट बार की हड़ताल। वकला ने अदालती अमूर का मुकम्मल बाइकआउट किया। वकला की अदालतों में अदम पेशी से साइलिन को मुश्किलात। वकला का कहना था कि गिरफ्तार वकला को फिल फोर रिहा किया जाए। बार ओहदेदारान ने कहा कि अदालतों की तकसीम के लिए मुतनाज़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया। अगर अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन वापस न लिया गया, वो बाकायदा तहरीक चलाएंगे। टोबा टेक्सिंग में वकला की हड़ताल से साइलिन रुल गए। वकला के अदालतों में पेश न होने से जमानत और दीगर केसेस की समाअत न हो सकी। बार एसोसिएशन इलामिये में कहा गया कि वकला के घरों पर गैर कानूनी छापे और गिरफ्तारियों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अहमदपुर सियाल में भी वकला ने मुकम्मल हड़ताल की। सदर बार अहमदपुर सियाल नफर हुसैन खान बलोच, जनरल सेक्रेटरी मलिक सफीर हुसैन खान ने वकला के घरों पर छापों और गिरफ्तारियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की।